Hello friends, welcome back to another amazing video. In this video, we will be discussing about Solution Challenge 2025, a global hackathon conducted by the Google itself. Yes, you heard it right. It's a hackathon conducted by the Google on the global level. It's similar to the Smart India hackathon that you already aware of. It's a national level hackathon. जो national level hackathon होती है वो Smart India hackathon उसकी तरह से है. But as we know, Google is a global company, so it's going to be a global level. The competition would be on the global level. You would be competing all over the world, and this challenge is known as the Solution Challenge 2025. Okay, so it's starting in the first week of the Gen itself, and we will be covering all about this. What are the information we have? I would be sharing all with you. Okay, so हम start करेंगे. What are the timelines? What are the eligibility? Who are eligible to participate in it? What are the perks and what are the prizes you would be getting and what you would be learning through whole this program? And it's a very wholesome program. You would be learning a lot from this, and you would be directly learning from the mentors of the Google itself. तो आपको Google के mentors जो है आपको यहाँ पर guide कर रहे होंगे. And if you are someone is interested in the development or in the development field, then you should be participating in this. It's a best to known hackathon. Okay, so let's starting from the first slide, and that is going to be what is Solution Challenge. As I already told you, organized by the GDG on campus in collaboration with the Hack2Skill. So this time it's in the collaboration with the Hack2Skill, and GDG on campus are directing in this whole Solution Challenge. So what is GDG on campus? I would be discussing it later when we will be talking about the eligibility, how you can participate. There it would be making a key role. वहाँ पर आपका GDG on campus का पूरा role आएगा. I would be telling you about this in the further. Okay. Now for student developer from various colleges, university across India who are a part of GDG on campus program. So don't worry, don't focus upon it. Don't worry if you are not the part of the GDG on campus program. Just let it be. मैं आपको पूरा समझाऊंगा. I am here. I would be providing you the whole thing. Okay, so just believe on me and watch till the very end. And also I provided the time stamp in the video. आप time stamp के through भी video के बीच में navigate कर सकते हैं और कुछ आपको particular part skip करके कुछ देखना. Okay, so let's coming to the next point. The Solution Challenge is an opportunity for students, developer to tackle pressing issues such as education, healthcare, sustainability and more. So it's a global hackathon. Okay, so हम global level पे जाते हैं तो कोई ना कोई solution हमें provide करना होता है. जो हम बना रहे हैं उससे कुछ प्रोडक्टिव निकल के आना चाहिए. दैट्स वाई वी आर टैकलिंग द प्रॉब्लम हियर लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द ब्रीफ, बट एज यू कैन सी एंड वन मोर थिंग, आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस होल पीपीटी इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी. इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं, इजिली एडिट कर सकते हो इसे. सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके, देन स्टूडेंट डेवलपर्स नॉट ओनली गेन वैल्यूएबल स्किल्स बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमें कुछ प्रोडक्टिव यहाँ पर बनाना होता है, नॉट ओनली अ प्रोजेक्ट बट अ productive project. Okay, then theme for the challenge would be aligned on the theme of social good. As I told you, it's a global level hackathon, so we would be working on something which would be socially benefit. The Solution Challenge revolves around solving real world problems. So you would be tackling the real world problems, and we have various themes. You would be getting 17 themes all around the world that they are tackling. Okay, so you can access the website directly to learn more about this theme. Let's see what they have on the website. Though I already summarize whole content which is available on this website on this PPT. मैंने सारा यहाँ का content जो PPT में summarize कर दिया है, so you would be able to easily access that. But let's see, this is the official website from where registration would start. But right now the registrations are closed. The registration would be starting from the Jan 6th itself, 2025. 6 Jan 2025 से registration start होंगे. जब start होंगे तो आपको पूरा बता दिया जाएगा. And one more thing there, on the 28th December, the official GDG lead would be conducting a live meet where you would directly interact with him and you can ask the question regarding this hackathon कि क्या क्या होने वाला है, कैसे हमें participate करना है, जो कि मैं सब यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. बट आपको मीट में पर्सनल इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा. सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा मीट का. ओके, सो दिस कंटेन ऑल द information. This website has all the information what you would get, what are the perks, what are the timelines, but all I summarized here in this PPT itself. So coming to the next thing, so who can participate? This is the main part, right? कि हम participate कर सकते हैं या नहीं. पर्क्स के बारे में भी हम ऑफ कोर्स बात कर रहे होंगे आगे, क्योंकि पर्क्स के लिए हम मेन पार्टिसिपेट करते हैं. बट हु कैन पार्टिसिपेट एक्चुअली? सो दोज who are 18 plus can participate. Those who are under a GDG on campus lead can participate. And don't worry, if you are not a part of the GDG, then I am here, because you can. There is also already mentioned that participant must be a from GDG campus. If not, you can find a GDG campus near you and join to become a member. I am here with the collaboration in the GDG चंडीगढ़ chapter. So yes, आप चंडीगढ़ के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन कर रहे होगे. अगर आपके पास GDG कैंपस का एक्सेस नहीं है डायरेक्टली, then I will be providing you that access.
with the help of the GDG Chandigarh on campus lead. Okay, so he would be guiding us throughout this program, and through his support we would be participating in this program. Because आप GDG chapter के बिना इसमें participate नहीं कर सकते हो, और अगर आपके कॉलेज में ऑलरेडी GDG chapter है then don't worry, आप उसके थ्रू participate कर सकते हो. Otherwise I would be providing you the support of GDG Chandigarh lead. Okay, so आप उसके थ्रू डायरेक्ट participate कर पाओगे अगर आपके पास कोई GDG chapter नहीं है. So don't worry, I make ensure that you will be participating in it. Okay, so participants can form team up to 4 members. yes, यहाँ पर आपको 4 members की टीम बनाने को मौका मिलेगा. बट अगर आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो भी अलाउ है. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एंड यू कुड आल्सो डू दिस. बट इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ टीम then that you would be gaining from the WhatsApp group itself. तो क्योंकि WhatsApp group पे वहाँ पर सारे like minded people हैं, those who are already developer or working on this. So make sure आप WhatsApp group ज्वाइन करके रखो. मैं इसलिए बार बार प्रेस कर रहा हूँ कि वहाँ पर कम्युनिटी है, like minded people की कम्युनिटी है. So you would be getting a lot of benefits from joining that group. Okay, then one participant can join only one team. That's important कि आप अगर एक ही टीम में ज्वाइन कर सकते हो. One team only have to submit one project. आपको एक one project submit करना होता है इसमें. And basically in the starting you have to submit a proposal. Okay, आपको proposal submit करना होता है. And proposal is a document, a PDF, in which you describe what are the tech stack you are using, what are in what way you would be tackling that particular problem. जो हम problem solve करने वाले हैं तो किस तरीके से वो solve करेंगे, what are the technologies we are going to use, how it would be helpful for the social good, and what are the tech stack we are using. So 3 से 4 पेज की PDF बना के हमें proposal submit करना होता है. वो सब आपको सिखाया जाएगा अगर आप वो मीट ज्वाइन करोगे. ओके, सो द मीट वुड बी कंडक्टिंग सून बाय द GDG लीड इटसेल्फ. सो उसका लिंक वगैरह आपको सब व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा जब वो मीट कंडक्ट होने वाली होगी. ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, वाई पार्टिसिपेट क्यों करना है. मेन बात तो ये होती है ना सर कि हम पार्टिसिपेट क्यों करने वाले हैं, इससे फायदा क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो टैकल रियल वर्ल्ड इशूज. यू वुड बी डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिकॉज गूगल वुड बी मेंटरिंग यू. अगर आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, योर प्रपोजल वुड गेट एक्सेप्टेड एंड यू वुड बी गेटिंग द 1-on-1 गाइड सेशन विद द गूगलर्स. You would be working on the real world solution or the issues, and if you are not got selected, don't worry. अगर आप विनर नहीं बन पाते then आपके पास तब भी मौका है that you can showcase these skills on your GitHub profile, on your resume, that yes, I participated in this program, I work upon this certain project. Then you would be having a solid project in your hand. So these kinds of hackathons are really helpful for you to move one step ahead in your career. Okay, then network with like-minded people. As I already stated कि अगर आप WhatsApp भी ज्वाइन करोगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ पर कम्युनिटी मिलेगी. बट जब आप गूगल की कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे होगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ लाइक माइंडेड पीपल के बीच में आप आके compete कर रहे होगे. सो यू विल बी अपस्किलिंग योर सेल्फ, देन अपस्किल एंड बिल्ड सॉल्यूशन. यस, जैसे कि मैंने एंड किया अपस्किलिंग योर सेल्फ, तो आप आपको अपस्किल कर रहे होगे जब आप एक सॉल्यूशन पे बिल्ड करोगे, एक रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पे. अब ये सॉल्यूशन किस पे हमें बनाना है, यहाँ पर आपको 17 जो है पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई हैं. सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इट फर्दर, बट अभी मैं आपको बता दिया ताकि आपको होप रहे. देन यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल रिकॉग्निशन, न्यूमरस opportunities for quality solutions with key focus on AI. So you would be working with the AI. आपका जो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है, आपका सॉल्यूशन होने वाला है, अगर वो AI के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है then that would be key benefit. But you would be getting the direct recognition. आप गूगल की किसी प्रोग्राम में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो भी वहाँ से मिलता है वो वैल्यूएबल होता है. तो आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा होगा अगर आप विनर बनते हो या टॉप 100 या रनर अप्स में भी काउंट होते हो. सो डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग पर्क्स. बट रिकॉग्निशन, पर्क्स के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज पर्क्स कोई छोटे मोटे पर्क्स नहीं है. देयर आर सेवरल पर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू. इवन फॉर द नॉर्मल participants there are perks. It doesn't matter if you are a winner or not. Okay, so let's come to the next part, registration guidelines and criteria. You can simply go through this. It's a simple registration process. What are the guidelines and criteria? मेन थिंग मैंने इसमें ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अगर आप पीपीटी के थ्रू जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. आगे जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में बताऊंगा. यस, हियर इज द टाइमलाइन पेज फॉर द होल कैंपेन. सो रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th Jan एंड इट वुड बी ओपन टू द 6th March 2025. काफ़ी लॉन्ग पीरियड है आपके पास रजिस्टर करने के लिए. बट ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन 6 मार्च के बाद क्लोज होंगे तब आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी. नो, वंस रजिस्टर्ड योरसेल्फ यू वुड बी इन द विजुअल ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम 13 Jan टू 28 February. आप इस बीच में आपको एक विजुअल ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे अपने आप को. आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करोगे कि मैं किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क करने वाला हूँ. देन आप उसके रिगार्डिंग डाउट्स भी पूछ सकते हो. आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे आप अपने सिलेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो. देन देयर वुड बी प्रोजेक्ट सबमिशन फ्रॉम 25th to 23rd March 2025. देन देयर वुड बी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. देन देयर इनिशियल शॉर्टलिस्ट अनाउंसमेंट, यानी कि आपको टॉप 100 में आप लाइक करते हो या आपका प्रोजेक्ट टॉप 100 में सिलेक्ट किया गया है नहीं, दैट वुड बी अनाउंस्ड ऑन द 21st April 2025. बट
टाइमलाइंस आर सब्जेक्टेड टू चेंज, यानी यहाँ पर गिवन है कि टाइमलाइन जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आपको एकदम स्टिक नहीं रहना है कि 21 अप्रैल को ही होगा जो होगा, नहीं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो दैट वो वी कैन हैंडल। ओके, द इनिशियल शॉर्टलिस्ट जब आपका हो गया, उसमें अगर आप टॉप 100 में सिलेक्ट हो गए, योर प्रोजेक्ट योर प्रपोजल गेट सिलेक्टेड इन द टॉप 100, देन नेक्स्ट अगेन वर्चुअल मेंटरशिप एंड प्रोटोटाइप सबमिशन। यहाँ पर आपको 1-on-1 इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है डायरेक्ट आपके गूगल मेंटर के साथ, जो आपको हेल्प करेंगे उस प्रोटोटाइप को रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन बनाने में, कन्वर्ट करने में। देन यू वुड बी सबमिटिंग योर प्रोटोटाइप ऑन 21 अप्रैल टू 25 May, then there would be again evaluation and the top 10 would be finalized on the 16th of the June 2025. Then second week of July 2025 को final जो winners होंगे वो top 3 winners जो हैं वो select किए जाएंगे, and there would be a live interaction where you would be showcasing your own project to the whoever the judges would be there. Then इफ़ अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, तो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पिंग करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी, मैं हमेशा आपको आंसर करने के लिए रेडी हूँ। एंड व्हाट आर द प्राइजेस, एक्साइटिंग कैंपेन प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स। व्हाट आर द प्राइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइजेस उन्हीं के लिए जो विनर्स होंगे, इसके अलावा भी पर्क्स हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूँगा, बट हियर आर द प्राइसेस फॉर द टॉप 3 विनर्स। विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप। फॉर द फर्स्ट विनर देयर वुड बी 2 lakh कैश प्राइज डायरेक्टली, एंड फॉर द फर्स्ट रनर अप देयर वुड बी 1,50,000 कैश प्राइज, एंड फॉर द सेकंड up, it would be 1,25,000 cash prize, and it would be distributed along with per person in the team। जहाँ तक मुझे पता है तो जो आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 members in a team, then it would be the price for 1 member। Okay, so yes, every member of the winner team would be getting this much price, so this is something you should work upon। And there would be 2 special categories, special category 1 and 2, that's not revealed right now, but जो भी criteria होगा वो आपको बता दिया जाएगा। And for those category, the category 1 would be awarded with 75,000 cash prize, and same for the category 2। And coming to the next thing, language and program platform compatibility। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है what are the tech stacks you are using। यहाँ पर एक key hidden thing is there, if you are using the tech stack without AI integration, then there are some low chances that your project gets selected। The higher possibility to get selected is only when you are using the Google tech stack or Google technologies in your project, like Flutter, TensorFlow or Firebase. These are the technologies, or the Gemini APIs, IDX platform. If you are using these kind of technologies in your project to make something solution or the useful, then there are high chances that you would be getting selected, because here we are, this whole hackathon is conducted by the Google itself। तो अगर हम उनकी tech stack को यूज़ करेंगे, उनकी technology को यूज़ करेंगे, so definitely they would be choosing us for the betterment। Okay, so make sure ये एक hidden tip and trick है या key trick है, you would be using the Google technologies like Flutter, TensorFlow, Firebase, and all the things are there। Gemini API अगर आप इंटीग्रेट कर पाते हो, अगर आपने पूरे सॉल्यूशन में AI, ऑटोमेशन, ML मॉडल ये सब इंटीग्रेट कर पाते हो, तो फिर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सिंपली यहाँ पर इतना बताया कि जो भी आप सॉल्यूशन या अपना प्रोटोटाइप बनाए, दैट शुड बी इन द इंग्लिश। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेंट्स। यस, मैंने ऐसा कहा था कि विनर्स के अलावा भी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ है। सो डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन विल बी अवॉर्डेड एज बिलो, रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ पार्टिसिपेंट एट एवरी माइलस्टोन। यू विल बी गेटिंग द participation of certificate of participation, certificate for successful project submission, certificate for top 100 selection, and certificate for top 10 achievements। तो इस तरीके के आपको सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे। सो डोंट वरी, अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट भी किया है और आपने प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल सबमिट किया है, तो आपको गूगल की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, दैट वुड बी डिजिटल एंड वेरीफाइड सर्टिफिकेट। ओके, एंड द इफ आफ्टर ऑल दिस थिंग, अगर इसके बाद भी आपको कोई असिस्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रहेगा कि हाउ यू वुड बी सिलेक्टिंग योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सिलेक्ट करोगे? सो व्हेन यू कम टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड स्क्रॉल डाउन टू देयर and you would go to here, yes, these are the problem statement submission themes. There would be 17 such themes. So let's click on see all. So there are all the themes like no poverty, zero hunger, good health and well benefit and gender equality। इस तरीके के आपको 17 टोटल इश्यूज देखने को मिलेंगे जिस पे आप वर्क कर सकते हो, और इनके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। लेट मी शो यू दैट इफ आई सिलेक्ट द नो पॉवर्टी, okay, so it's not visible right now, but later on they would show the projects from the previous submissions that would be helpful to understand like what are the previous top selected what we can say, the top selected projects। So let's check out on the previous year website itself, Google Solution Challenge 2025।
सो इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट, दिस इज द ओल्डर वन, ओके। पिछली बार जो है ये वाली वेबसाइट थी, इस बार आपको Hack2Skill प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इंटीग्रेट किया है, तो वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, and then we would be able to see all the example projects from the previous year। आपको 2024 में जो 2023 में जो सिलेक्ट हुए थे प्रोजेक्ट्स, उनके आपको जो है यहाँ पर सैम्पल मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर देयर विजन्स, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, द यूनाइटेड नेशंस, and you would be able to see all they want, what are their vision and what they mean by no poverty। तो आप अगर इस पूरे डाटा को एनालाइज करेंगे, आपको जहाँ पर जो गिवन है, आप पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, देन यू वुड बी एबल टू सी और रिकॉग्नाइज और मेक अ क्लियर आइडिया इन योर हेड दैट व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड देम, आपको उन्हें क्या प्रोवाइड करना है, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। एंड देयर आर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स एज वेल, कि पिछली जो भी सबमिशन हुए थे उसमें जो सिलेक्ट हुए उनका प्रोजेक्ट कैसा था, क्या क्या उन्होंने प्रोवाइड किया था। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डोनेशन मैच वेबसाइट दैट वुड बी सिलेक्टेड एंड यू कैन गो थ्रू दिस प्रोजेक्ट। आप समझ सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था कि उन्होंने सिलेक्ट किया, व्हाट आर दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग एंड व्हाट आर दे सॉल्विंग, ओके। तो इस तरीके से आप विजिट कर सकते हो, दोनों वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड एज वेल एज आपको इस पीपीटी में भी सब कुछ मिल रहा होगा। एंड कमिंग टू द फाइनल पार्ट बिफोर द क्लोजिंग, दैट इज नीड असिस्टेंस, रीच आउट टू अस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन आप सॉल्यूशन चैलेंज support@hack2skill.com पे जाके डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा GDG ऑन कैंपस इंडिया पे जाके अपना GDG चंडीगढ़ या फिर जो भी आपका GDG कैंपस है उसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर आपको ये वीडियो फिर से देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड आपको ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। एंड क्लियरिंग वन मोर डाउट, अगर आप किसी GDG से बिलोंग नहीं करते अभी तक, जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया अभी, इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेंट और द मेंबर ऑफ एनी GDG, देन डोंट वरी, GDG चंडीगढ़ इज कोलैबोरेटिंग विद अस एंड दे वुड बी प्रोवाइडिंग यू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सीट्स ऑल ऑफ देयर, ओके। तो GDG चंडीगढ़ के जो लीड हैं वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, वो आपको फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंड डोंट वरी, आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप GDG किसी और GDG कैंपस के मेंबर नहीं हैं, अगर आप उसके रेस्पेक्टिव मेंबर हैं, देन आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें फॉर्म प्रोवाइड करें। एंड अदरवाइज अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या नहीं करा रहे हैं पार्टिसिपेट, या जो भी रीज़न है, देन वी आर वेलकमिंग यू, आप आएँ चंडीगढ़ के साथ जुड़ें, GDG चंडीगढ़ लीड के साथ, एंड start participating this whole solution challenge 2025। I hope I covered all your doubts, and इसके बाद भी कोई doubts है, make sure you ask me in the WhatsApp group or on the comment section। And if you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button, share this video with all so that everyone can take the benefit of it। And thank you very much, goodbye।